नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। इंडोर स्टेडियम की लौटेगी रौनक। कोरोना में बनाया गया था सेफ होम। राष्ट्रीय टेबल टेनिस कोच सुब्रत रॉय ने स्टेडियम को आधुनिक बनाने का दिया प्रस्ताव। कोरोना के बाद सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम की रौनक लौटने लगी है। बताया जाता है कि बेहतर बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण यहां अच्छे खिलाड़ी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इस बात के मद्देनजर राष्ट्रीय टेबल टेनिस कोच सुब्रत रॉय ने इसे आधुनिक और वातानुकूल इंडोर स्टेडियम बनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस कोच सुब्रत रॉय ने खुशी जताते हुए इंडोर स्टेडियम को फिर से खेलने लायक बनाने की पहल किए जाने का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आधुनिक स्टेडियम बनाया जाए तो अच्छा है। इसके अभाव में शहर में नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में सभी देशों में आधुनिक प्रशिक्षकों के माध्यम से आधुनिक तरीके से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ভালো উদ্যোগ। আমি শুনতে পেরেছি যে আমাদের মাননীয় মেয়র শিলিগুড়ি ইনডোর স্টেডিয়ামটা যেসব যেমন আমাদের কোভিডের জন্য যে ওখানে একটা সেফ জোন করা হয়েছিল, তার ফ্লোরিং নষ্ট হয়ে গেছিলো, সেটাকে আবার রিপেয়ার করে এবং স্টেডিয়ামটাকে টেবিল টেনিস এবং ব্যাডমিন্টনের জন্য উনি খুলে দিচ্ছেন। এটা টেবিল টেনিসের জন্য খুব বড় খবর, ভালো খবর যদি এটা সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হয়। এবং আমার বিশ্বাস যে এখানে শিলিগুড়ির সমস্ত খেলোয়াড় যারা স্টেট র্যাঙ্কিং প্লেয়ার, কিন্তু তারা প্র্যাকটিসের অভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য তারা অল ইন্ডিয়া লেভেলে সেরকম পারফর্ম করতে পারছে না। আমার মনে হয় তাহলে আগামী দিনে আবার টেবিল টেনিসের সুদিন ফিরে আসবে। বাচ্চারা আমি দেখতে পেরেছি যারা যারা টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে খেলছে তারা সব মানে ব্যাকডেটেড কোচিংয়ের অভাবেই আজকে এই জায়গাটায় গেছে। আমার বিশ্বাস যে যদি মানে সিনিয়র ভালো ভালো প্লেয়াররা যারা বর্তমান প্লেয়ার তারা আস্তে আস্তে কোচিংয়ে আসছে, আমরাও যেমন নিয়ে আসছি, মান্তু কোচিং করছে, আমরা কোচিং করছি। আমি মান্তুর হাত ধরে 18টা সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন, জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন তৈরি হয়েছে। আমার মনে হয় ভালো কোচের অভাবে প্লেয়াররা তৈরি হচ্ছে না, কারণ টেবিল টেনিসটা এত এগিয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের শিলিগুড়ির যারা কোচ, সিনিয়র কোচ বিশেষ করে, তারা সব ব্যাকডেটেড হয়ে আছে। এই জন্যই আজকে প্লেয়ারের টেবিল টেনিসের এই অবস্থা। बागडोगरा में अज्ञात युवक का शव बरामद। पास में मिली शराब की बोतलें। बागडोगरा के फैरानी जोत इलाके में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने युवक का शव देखा और पुलिस को घटना की खबर दी। घटना की खबर मिलते ही बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच पुलिस ने शुरू कर दिया है। वही उसकी नाम तो पता नहीं चला, लेकिन युवक का उम्र तकरीबन 30 से 32 वर्ष बताया जा रहा है। ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটেনি বা এই এলাকা শান্ত, এবারে দু একজন হয়তো কোনোদিন হয়তো মদ পদ খায়, সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু এই ধরনের এত সুন্দর মানে এইভাবে এই ঘটনা ঘটেনি কোনোদিন। এবার আমাদের এখানে প্রথম এই ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা নিয়ে আমাদের খুব চিন্তা ভাবনার ব্যাপার। এইসব ফাঁকা জায়গার মধ্যে এইভাবে এই যে একটা ঘটনা ঘটে গেল, সেটা কোথার থেকে হলো, কি করে হলো, সেই তদন্তটা আমরা এখনো জানতে পারিনি। আশা করি আমরা জেনে যাব। सिलीगुड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या। शराब के नशे में पैसे को लेकर घटना को अंजाम देने की आशंका। खून से सना तौलिया और एक भुजाली भी हुआ बरामद। घटना कुछ ऐसी फूलबाड़ी में देर रात अंधेरे में एक युवक की बेरहमी से हत्या की घटना सामने आई है और मंगलवार देर रात यह घटना फूलबाड़ी के पूर्व सिपाही पाड़ा इलाके में घटित है। इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। তো মেরেছে মানে এতটা সাহস যে বলছে না আমি কিছু করিনি আর কি, কিন্তু আমি শিওর একটাই জিনিস যে ওর হেডফোনটা হাফ এর গলায় হাফ ওর গলায় রয়েছে আর কি, গলায় গামছা পেঁচিয়ে মেরেছে আর কি শ্বাসরোধ করে। কালকে তো ভেবেছিলাম অন্য কিছু, পরে দেখলাম ওর গলায় বাঁধা রয়েছে, গাড়িতে গামছা ভুজালি সব ছিল আর কি। খুব প্রাকৃতিক ব্যাপার আর কি। আর আমার প্রাথমিক ধারণা হচ্ছে ইন্টারনাল ব্যাপার, এটা কোনো পাড়ার কোনো মস্তান টস্তানের ব্যাপার না আর কি। কারণ এটা যদি পাড়ার সেই মার্ডার হতো তাহলে 4:1 দেখা যেত, এটা 1:1 দেখা গেছে আর কি। মানে একজন হলো আর কি। একজন তো ছিল যে বেঁচে ছিল, সে মানে যে মেরেছে সে তো নেশা করেছিল, মানে তার চোখে জল নেই, এত লোকে এত মারলো আর কি। কালকে যখন আমি দিক দিয়ে গাড়ি রেখে আসছিলাম, তো একটা টোটো ছিল ওখানে দাঁড় করানো, একটা টোটোর থেকে আরও একটা ছেলেকে ওখানে নিচে নামায় কিছু করছিল। তারপর আমি যখন আসি, ওনার হাতে একটা দাও ছিল, দাও না ভুজালি কিছু একটা ছিল। যখন আমি বলি এই কি করিস, ধাওয়া দি, উনি তাড়াতাড়ি ওই ছেলেটাকে রেখে টোটো নিয়ে দৌড় মারতে ছিল আর কি।
তখন আমরা যা ধরলাম টোটোওয়ালাকে আসার পর মানে ছেলেটাকে দেখলাম, আসে দেখি যে ওনার অলরেডি ডেট হয়ে গেছে। তখন ওকে জিজ্ঞেস করি যে पुलिस लिखी हुई बोलेरो गाड़ी की चपेट में आने से टोटो चालक सहित 3 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस लिखी हुई एक बोलेरो वाहन के धक्के से टोटो चालक समेत 3 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जलपाईगुड़ी शहर के गुमटी नंबर 4 संलग्न गोमास्तापाड़ा इलाके में बुधवार को हुई घटना में गंभीर रूप से घायल एक टोटो चालक सहित 3 स्कूली छात्राओं का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। स्कूल प्रशासन और परिजनों ने अस्पताल में घायल छात्राओं से मुलाकात की है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। এখন ডাইরেক্ট মেরে দিয়ে এটাকে পাল্টি খাওয়াই দিল। আর বাচ্চাগুলো ছিল, বাচ্চাগুলোর উপরে গাড়িটা পড়ে গেল। তারপরে এখানকার সাধারণ লোক এসে টোটোটাকে উঠানো হলো, উঠাইয়ে তার বাচ্চাগুলোকে সাইডে নিয়ে যাওয়া হলো। তার কারো মাথা ফুটে গেছে, কারো হাত পা কাটে গেছে, কেউ হাঁটতে পারতেছে না। সবকে আমরা হসপিটালে পাঠাচ্ছি, প্রশাসনকে ফোন করছি, কিন্তু কোনো প্রশাসনকে কোনো আসে নাই, যার জন্য আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। গাড়িটা কার গাড়ি? গাড়িটা আমরা যেহেতু ধারণা যেহেতু কৃষিবাজারই গাড়ি হবে সম্ভবত, হ্যাঁ, কিন্তু এরা বলছে পুলিশের গাড়ি ওটা না। যাই হোক, গাড়ির নাম্বার WD-1075 এইটুকু দেখছি ব্যাস, আর তাছাড়া কিচ্ছু দেখিনি। আর মেরে দিয়ে ও যা স্পিডে গেল, একটু দাঁড়ালো না পর্যন্ত না। मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता, कहा इससे बुरा और कुछ भी नहीं। कालचिनी के लताबारी अस्पताल में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से एक गर्भवती मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की कथित तौर पर मौत को लेकर बुधवार को राज्य की स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हालांकि अभी पूरा मामला जांच के अधीन है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह बातें कही। বাড়িতে একটা শিশু গর্ভ অবস্থা মারা গিয়েছে জন্ম হওয়ার আগে। ওরা অভিযোগ করেছে যে অ্যাম্বুলেন্স চালকের গাফিলতির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে। থানায় অভিযোগ হয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তর অভিযোগ করেছে পরিবারের সদস্যরা। আমি একজন সাংবাদিকের মাধ্যমে এই ঘটনাটা কালকে শুনেছি এবং আমি বলেছিলাম যে কমপ্লেনটা লজ করা হয়েছে সেটা সিএমও সাহেবকেও জানাতে এবং তার একটা কপি আমাকেও দিতে। এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এর চেয়ে খারাপ কাজ কিছু হয়নি। এটার কঠোরতম শাস্তি তখন হবে, কিন্তু সবই তদন্ত সাপেক্ষ। আমি নিশ্চিতভাবে ঘটনাটা আরেকটু বেশি নজর দিয়ে যাতে স্বাস্থ্য দপ্তর দেখে সেটা আমি তাদের বলব। कुचबिहार में बैंक कर्मी का सड़ा गला शव बरामद। अरुणाचल प्रदेश के थे निवासी, घर में मिली लाश। कुचबिहार के मातावांगा शहर से बुधवार को एक सरकारी बैंक कर्मी का सड़ा गला और खून से लथपथ शव बरामद किया गया है। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार शहर के 6 नंबर वार्ड में आज सुबह से बदबू दे रही थी और इसके बाद लोगों को संदेह हुआ और बाद में घर का पिछले कई दिनों से घर बंद था, ऐसी ही खबर मिल रही है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो बैंक कर्मी के खून से लथपथ शव उन्हें मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जांच शुरू कर दी है। আমি তো কিছুক্ষণ আগে শুনলাম এখানে কয়েকদিন যাবত অফিসে যাচ্ছে না, অফিসের স্টাফরা খোঁজ খবর করছিল। আজকে সকালবেলা পাড়া প্রতিবেশী আমাদের এখানে চন্দন দাস, এখানে আগে প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান কল্যাণী বুদ্ধারের পাশে বাড়ি, তো এরাও গন্ধ গন্ধ পাচ্ছিল। তাই অফিস স্টাফরা আসার পরে ওরাও সন্দেহ করছিল যে কোথাও কোথাও একটা গন্ধ হচ্ছে। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়, পুলিশ আসলো, আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকলাম, দেখলাম রক্তাক্ত অবস্থা পড়ে আছে, মদের বোতল টোতল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, পুরোপুরি। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। तो बिना देर किए आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 से अंतिम तारीख। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी, मिलन मोड़, पोस्ट ऑफिस, चंपासारी, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट
8016235569। केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। हिमालयन किन फर्नीचर यहाँ पे उपलब्ध है अट्रैक्टिव किन सोफा सेट, डाइनिंग सेट, क्रिस्टल के बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस फर्नीचर। टाटा स्टील प्रोडक्ट के स्टील एंड स्टाइल में है 3 डोर और 2 डोर अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। कार्लन सोफा वर्ल्ड में मिलेंगे सोफा सेट, मैट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट एवं सभी तरह की फर्नीचर और फर्निशिंग। पूजा ऑफर में है अप टू 20% डिस्काउंट और अट्रैक्टिव गिफ्ट। 35 सालों की विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन किन फर्नीचर नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। समस्या है तो समाधान भी है और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर। सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226, 8942879515। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri 90640 90007, www.medicalscribe.co.in। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपया पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। दिस इज द मेम्ब्रेन डोर मेड विथ अ ब्लॉक बोर्ड, 2000 रुपीज फॉर अ जनरल डोर साइज per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot.
7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty. Fully digital classrooms. Secure and monitored. Focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at. All subjects under one roof. Daily and weekend batches. Hostel facilities available. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी में एक कॉलेज छात्रा का शव उसके घर से बरामद किया गया। घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर ग्राम पंचायत कार्यालय से सटे इलाके में कॉलेज छात्रा का फंदे से लटकता शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि जलपाईगुड़ी पीडी कॉलेज की छात्रा बुधवार दोपहर को स्कूल से लौटने के बाद अपनी बड़ी बहन का शव फंदे से लटका देखी। खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उसे जलपाईगुड़ी अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया शव के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है। मोबाइल की मदद से पुलिस घटना की जांच कर रही है। नाम की কোন ক্লাসে পড়ে? কোন ক্লাসে? কোন ক্লাসে? কোন কলেজে? হ্যাঁ, বিএ ফাইনাল দিবে। পিডি কলেজে পড়ে? তো কি হলো হঠাৎ করে, কখন দেখলেন? কি করে কি হলো কিছু বলেও নাই, বলতে তাও তো হতো। আমি পাশে ছিলাম, মাসি বলতে পারতো যে মাসি, তাকে না আমি বলতাম। কিছু সন্দেহ হচ্ছে মনে হচ্ছে? কোনো কিছু হয় না। কোনো কারোর সঙ্গে যোগাযোগ, কোনো বন্ধু বান্ধব বা মোবাইলে? एम्बुलेंस चालकों ने किया हड़ताल, सुरक्षा की मांग को लेकर किया चक्का जाम। अलीपुरद्वार के कालचीनी लताबारी ग्रामीण अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा बुधवार को बंद रही। एम्बुलेंस चालकों ने कहा कि वे लोग सुरक्षा की कमी को ध्यान में रख रहे हैं और कमी से जूझ रहे हैं। जब तक प्रशासन उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं देगा वे लोग एम्बुलेंस नहीं चलाएंगे। इन कारणों से अधिकांश ड्राइवर एम्बुलेंस चलाना बंद कर अन्य नौकरियों में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी में एम्बुलेंस नंबर 102 भी चलती है तो सवाल उठता है कि यह कितनी सेवा दे सकती है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि गंगोटिया क्षेत्र की रहने वाली खुरेसा खातून की अपने बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। जो कल का जो घटना हुआ वही विषय लेके सब ड्राइवर का मन में एक डर है। क्यों डर है बोलने से, कल का जो लफड़ा हुआ वही लेके हम लोग डर गए, इसलिए हम लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं। अब जैसे वो लोग ने बोला कि हम लोग दलाली है, वो हिसाब से तो हम लोग सबको परिसेवा दिए है, वो हिसाब से वो लोग भी अच्छा नहीं किया, इसलिए हम लोग का जिम्मा कौन लेगा? अगर हम लोग रात 24 घंटा सर्विस दे के हम लोग सुरक्षा महसूस नहीं करेंगे तो हम लोग चला के तो कुछ फायदा नहीं है ना हम लोग को। मालदा के मानिक चौक से बम से भरे 2 बैग बरामद किए जाने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय लोगों ने आज सुबह झाड़ियों में 2 बैग पड़ा देखा और इसके बाद पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही मानिक चौक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इसके साथ ही पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दिया। गौरतलब है कि हाल ही में गोपालपुर के बालूपुर इलाके में बम विस्फोट में 2 बच्चे घायल हो गए थे और बम बरामदगी से इलाके में दहशत है। तृणमूल नेता पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से पैसे मांगने का लगा आरोप। तृणमूल का एक नेता प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से पैसा मांग रहा है। कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार द्वारा इस बारे में एक वीडियो ट्वीट किए जाने के बाद राजनीतिक बवाल शुरू हो गया था। उन 2 वीडियो में सुकांत मजूमदार ने कहा है कि एक
स्थानीय तृणमूल नेता चंदन साह नामक व्यक्ति मालदा के मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति को घर दिलाने के नाम पर पैसा मांग रहा है। इसके बाद वह नेता गायब है। वहीं दूसरी ओर उस वीडियो में मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समसी कांदररान निवासी हितग्राही विद्य विनोद राय ने कहा कि चंदन साहा ने उनसे मकान दिलाने के नाम पर पैसे मांगे। মালতীপুরে ঘটনাটা যতদূর মনে পড়ছে আমার, এই তো নতুন কিছু নয়, গোটা রাজ্যই জানে যে গোটা তৃণমূল কংগ্রেসটাই তো তোলামূল পার্টি, তোলা তুলেই তো চলছে ওদের, তোলাটাই কাজ, তোলা দান, তোলা গান, তোলা কর্মমূলী, তোলা ছাড়া আমি যেন ফোনই হারা ফোনই, সে তোলাই তৃণমূল নেতৃত্ব বলছে অভিযোগ করছেন না কেন আপনারা? টুইট করছেন আপনি, কৃষ্ণবাবু কালকে বলছেন যে অভিযোগ করছেন না কেন? আমরা অভিযোগ করে কি করব? ওনার পুলিশের দম আছে যাবে? কৃষ্ণবাবু বললে পরে তো পুলিশ বাথরুমে যায়, তাছাড়া তো যায় না পুলিশ। রাজ্য মন্ত্রিসভার একজন তার একটি ভিডিও ট্যাগ করেছেন, তার টুইটারে দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন তৃণমূলের এক নেতা বেনিফিশিয়ারির কাছ থেকে ঘর দেওয়ার নাম করে টাকা দাবি করছেন, যদিও ওই তৃণমূল নেতা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কি বলবেন? প্রথম কথা, সুকান্তবাবু কোথা থেকে জানতে পারলেন? আর যদি জেনেও থাকেন তাহলে তিনি এফআইআর করলেন না কেন? এফআইআর করার অধিকার সকলের আছে, কমপ্লেন করার অধিকার সকলের আছে। যদি কোনো বেনিফিশিয়ারি কাছ থেকে নেয় তাহলে এফআইআর করলে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে টাকা চাইছে কিনা। না জেনে শুনে একটা প্রেসে বলে দেওয়া কি টুইটারে লিখে দেওয়া, এটা তো মনে করি যে ওর মতো একটা রাজনৈতিক দলের সভাপতি এটা বাঞ্ছনীয়। শুধু পলিটিক্স করার জন্য সমাজে থাকা নয়, সমাজে অনেক কাজ আছে যেটা সমাজে করতে হয়। रियासी इलाके में धारीदार लकड़बग्गा मिलने से इलाके में मची सनसनी। वन कर्मियों ने पकड़ा। जमुरिया के लाड़ा गांव के घनी आबादी वाले इलाके से धारीदार लकड़बग्गा को पकड़ा गया है। वन विभाग के मुताबिक गांव के लोगों ने बुधवार सुबह गांव के पास के खेतों और जंगलों से तेज आवाज सुनी। बुधवार सुबह से वो वहां गए तो देखा कि लकड़बग्गा तालाब के पीछे सुनसान जमीन में लोमड़ियों को फंसाने के लिए पत्ती की आड़ में घात लगाए बैठा है। इसकी सूचना तत्काल जमुरिया थाना अंतर्गत चरुलिया चौकी को दी गई और वहां से दुर्गापुर वन विभाग, गौरांटी बीट कार्यालय व सड़िया बीट के कुशल कर्मचारियों को वन अधिकारियों सहित आसानसोल वन क्षेत्र व आसानसोल क्षेत्र के रेंज ले गया। वन और पुलिस और वन विभाग के कर्मियों के सैन्य प्रयास से लकड़बग्गे को पिंजड़े में बंद कर लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।